اس بات کو کہا کہ جا بیٹا پھر گناہ نہ کرنا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے جب ہم گناہ میں پڑے رہتے ہیں اور گناہ کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بھی بتایا اس بات کو کہ کس طرح ابلیس نے گناہ کے طریقہ کار کو تبدیل کیا ہم سب کے لیے، اور گویا اس طرح کچھ بیٹیاں بیٹے اس نتیجہ تک بھی پہنچے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہے۔ ابلیس نے اس طور سے لوگوں کو پریشان کیا اور ورگلایا، لوگ پہچان نہیں کر پا رہے دلوں میں کہ کیا گناہ ہے۔ پھر پولس رسول نے کہا کہ شیاطین کے پیالے اور خدا کے پیالے دونوں سے، اور آپ اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ کلیسیا دنیا کے لوگوں کی بات ہے نہیں اور نہ خدا کی بارگاہوں میں ہوتی ہے۔ یہاں پر کلام کلیسیا کے لیے ہے، اور عزیزو خدا مسیح نے شفا دینے کے بعد یہ نصیحت اور ہدایت اس لیے فرمائی، انسان کو ادھر سے گناہ سے باز کرتے ہیں اور پھر وہ گناہ میں چلا جاتا ہے۔ عزیزو ماہر نفسیات کے مطابق انسان کو جہاں سے منع کیا جائے وہ اس پر زیادہ جاتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ خدا کے کلام کے مطابق کلام میں لکھا ہے جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا۔ بڑے خطرناک ارقام ہیں، بڑی خطرناک تعلیم ہے۔ عزیز میرے بیٹیوں، کہیں بھی ریلیکسیشن ایک منٹ کے لیے نہیں ہے۔ ہر جگہ پہ خدا کا کلام کہتا ہے جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا آگ کی جھیل میں ڈالا جائے، اور یہ ہو جانا ہے۔ آپ اس کو ریلیکس نہ لے کہ خیر ہے کوئی بات نہیں دیکھی جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ جو کچھ کلام نے کہا، جو کچھ روح القدس نے کہا، جو کچھ خدا نے کہا وہ ہو جانا ہے۔ آئیے خدا کے کلام کو کھولے میرے ساتھ، اور عزیزو آپ جانتے ہیں رسولوں کے بعد نکالیں پہلا باب 3 سے 5 تک ہم پڑھیں گے۔ سو میں نے آج اختیار کا پیغام دینا تھا، لیکن آج خدا کا روح ان آیات کے متعلق ہمیں قائل کرتا ہے، پھر اگلی بار ہم اس بات کو جان سکیں گے۔ سو بات کچھ اس طرح ہے، خداوند مسیح نے موت، قبر اور ابلیس پر فتح پائی، اور آج سوال ہمارے سامنے یہ ہے کہ کتنی دیر تک زندہ رہا، اور زندہ تو رہا لیکن کرتا کیا رہا، اس بات کو آج جانیں گے۔ رسولوں کے بعد پہلا باب 3 سے 5 تک نماز سے پڑھیے۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدوں کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو بپتسمہ سے پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ آمین۔ سو آئیے خدا کی اس عظیم خدمت کو دیکھیے، خدا کے جلال کے لیے۔ عزیزو آپ جانتے ہیں خدا مسیح نے موت، قبر اور ابلیس پر فتح پائی، اور بلا کر وہ زندہ ہوا، اور بڑی قدرت کے ساتھ خدا کے جلال کے لیے اور اپنے
शगीर्दों पर जाहिर होने के लिए और खुदा के लोगों पर इस हुक्म को सादर करने के लिए किस तरह हम इस बात को जानते हैं। खुदा मसीह ने ये वाइस दिया, पैगाम दिया, खुतबा दिया और इसको हम खुदा के जलाल के लिए देख सकते हैं। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है कि यरूशलेम में ठहरे रहो और खुदा के जलाल के लिए इसका मतलब क्या होगा? पाक रूह के मुंतज़िर रहो। खुदा की हज़ूरी में रूह कुद्स के मुंतज़िर रहो। आज बहुत सारे लोग रूह कुद्स से खाली हैं और खुदा की बारगाहों में खुदा के साथ खुदा के पाक कलाम को जानते और सुनते हुए भी आप इस बात को जानते हैं, आज भी चर्च पेंटिकॉस्टल है और बहुत सारे लोग रूह कुद्स से खाली हैं। जरा सुनिए इस वजह से खुदा के कलाम को, और ये बहुत जरूरी है। खुदा के कलाम के मुताबिक उस वक्त तक हम खुदा के हकीकी मेंबर नहीं बन सकते जब तक रूह कुद्स ना खुले। जरा कलीसिया का शेड्यूल देख लीजिए और किताबे मुकद्दस के बारे में जान लीजिए कि किस तरह खुदा की बारगाहों में कलीसिया का मेंबर या खुदा का बंदा या खुदा की बेटी कौन होगी। बड़ा जरूरी सवाल है। खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा ने बशीरियत के अय्याम में भी और उसके बाद जिंदा होकर भी दो निकात पर रोशनी डाली। पहली बात यह है कि वादा के मुंतज़िर रहो। इसका मतलब है कि आपको रूह कुद्स मिलना चाहिए। कुछ लोग, मैंने आपको बताया हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कोई बात नहीं, शायद उनकी नजर में मसीह घराने में पैदा होना, मसीह खानदान में पैदा हो जाना, यही मसीहत है, यही रासबाजी है। लेकिन कलाम को जाने जो रूह कुद्स याफ्ता नहीं है, खुदा उनको आखिरी दिन जिंदा नहीं करेगा। खुदा के कलाम के मुताबिक खुदा उनको जिंदा नहीं करेगा। इस बात को जरा आज देख लीजिए, फॉलो कीजिए और इसको अपनाइए। खुदा मसीह ने कहा मुंतज़िर रहो। मुंतज़िर का मतलब है इंतजार करना। और किस तरह हम खुदा की बारगाहों में आज भी और आज से कुछ साल बेशतर उस शख्स को खुदा की खिदमत नहीं दी जाती थी। सुनिए, उस शख्स को खुदा की खिदमत नहीं सौंपी जाती थी जो रूह कुद्स याफ्ता ना हो। और खुदा के जलाल के लिए आज तो हम खिदमत भी करते हैं, कलाम भी, एल्डर डीकन भी। लेकिन एक वक्त था, हमारे अपने चर्च की बात है, कि जब रूह कुद्स नहीं होता था, कोई खिदमत खुदा के जलाल के लिए कोई खिदमत नहीं दी जाती थी। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, जब तक रूह का लिबास ना मिले ठहरे रहो। और ठहराव आज लोगों में है नहीं। किस तरह? क्योंकि हर एक को जल्दी है, मुझे कादम बनना है या मुझे और कोई खिदमत हासिल करनी है। लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के जलाल के मुताबिक हम इस बात को जानते हैं, जब तक रूह कुद्स ना मिले ठहरे रहो। और इस बात को भी आपने जाना है कि यूहन्ना ने पानी से बपतिस्मा लिया, लेकिन तुम रूह कुद्स का बपतिस्मा पाओगे। खुदा के जलाल के लिए हम बपतिस्मा
शुक्र। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क़ुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन के इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। आमीन। सो खुदा के जलाल के लिए जब रूह कुदस को पाओगे तो कुव्वत पाओगे। रूह कुदस के बगैर कुव्वत नहीं है, तसल्ली नहीं है, इत्मीनान नहीं है। रूह कुदस के बगैर हमारी जिंदगी अजीज बहनों भाइयों अधूरी है। इसके लिए हमें हर रोज कोशिश करनी है, दुआ रोज़े के साथ और खुदा की बातों में आकर खुदा के जलाल के लिए। और जब हम झुके रहेंगे, लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम फिक्र करने वाले हों। हमारे पास पाकिस्तानी कौम का ये हाल है, हमारे पास रूह कुदस है फिर भी ठीक है, अगर रूह कुदस नहीं है फिर भी हम कोशिश नहीं करते। खुदा के जलाल के लिए, खुदा की अजीम बारगाहों में आप झुके और खुदा से रूह कुदस मांगे, फिर खुदा आपको ताज़गी देगा। एक खुदा के कलाम में से इंसाफ आप सुनिए खुदा के जलाल के लिए कि किस तरह जब सलीबी वक्त था, मुकद्दस पतरस ने उस लौंडे ने पूछा क्या तू गलीली है? यीशु का जवाब बोली तुम्हारी बेटी है, यीशु के साथ है। उसने कहा मैं नहीं जानता उसको, और 3 बार इनकार भी किया। आप इस बात को जानते हैं, बखूबी वाकिफ हैं। और इसी को जब रूह कुदस मिल गया तो रसूलों के अमाल दूसरे बाब में लिखा है कि पहले बारिश में ही 3000 लोग खुदा के कलाम को कबूल करके कलीसिया में शामिल हो गए। हालेलुया। ये रूह कुदस है, ये खुदा की हुजूरी है और ये खुदा की मोहब्बत है। रूह कुदस के बगैर अब ये जिंदगियों में अधूरापन जो पाया जाता है, आप समझते नहीं और मसीह के कफारा को नहीं समझते आप कई बार। और अगर बात शराकत भी ना ले फिर भी कुछ महसूस नहीं होता। अगर हम इबादत में भी ना आए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये सारी बातें, सारे नकाइस रूह कुदस के बगैर है, वरना इबादत के बगैर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको सुकून नहीं मिलता और वो खुदा की इबादत के लिए आते हैं, खुदा के नाम को जलाल देते हैं। ऐसी तो ये पहला हिस्सा था आयत का, और एक और नुक्ता इसमें इस स्क्रिप्ट में है 3 से 5 आयत जो हमने पढ़ा। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बादशाही की बातें कहता रहा। ये नहीं हुआ कि मैंने सलीब उठाई, मैं कुर्बान हो गया और आप आराम करते हैं, रिलैक्स हो गया। कई बार कलीसिया मैं दुआ के लिए वक्त करता हूँ और आप कलाम के बाद रिलैक्स हो जाते हैं। कभी जो गीत भी हो गए, अभी पैगाम भी हो गया, लेकिन वो दुआ का वक्त होता है। मैंने बताया सुबह कि मुस्लिमों के लिए रिलैक्सेशन का वक्त नहीं है। अगर आप रिलैक्स हो गए तो प्लीज आगे दबा देगा, दबाया हुआ भी है। अगर आप कलाम से खाली हुए, रूह कुदस से खाली हुए, इब्लीस का वार चल जाएगा, इब्लीस आ जाएगा, आपको दबा लेगा और आपको अपनी मनमानी, इब्लीस कहेगा इधर नहीं जाना, इधर जाना। आप और कोई करें, राशन की या कुछ भी, तो लोग कभी भी देखिए वो आ जाएंगे। लेकिन इबादत जो खुदा का
مقصد ہے کہ لوگ خدا کی بارگاہوں میں آئیں، اور آپ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور عبادت سے ہی پریز کرتے ہیں۔ پھر کس طرح خداوند آپ کو برکت دے گا، کس طرح آپ کی بیماریوں کو لے گا، کس طرح آپ کو سنبھالے گا۔ اور ابھی تھوڑا سا وقت باقی ہے، پھر آپ نتیجہ سن لیں گے، میں بھی اور آپ بھی، کہ کس طرح خدا کو ہم تنگ کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ نہ کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا سا وقت کہہ دیو، خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے اس کا شاد اس کے ہاتھ میں ہے، اور خدا کے کلام مقدس کے مطابق وہ اپنے کریان کو خوب صاف کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ گند مند نہیں رہے گا، ہمیشہ اسی طرح چلتا نہیں رہنا۔ خدا نے ان لوگوں کو جدا کر دینا ہے جو ہمیشہ صبح اٹھتے ہوئے اور سارا دن خدا کو کام کرتے ہیں، جھوٹ مکر اور فریب کی باتیں، خدا سے دوری، نفرت، حسد اور کینہ جو خدا نے منع کیا وہ ہم کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا وہ سبق باقی ہے، اور پھر خدا بتا دے گا کہ آپ نے کیا کر کے آئے ہیں۔ نتیجہ اور سب کچھ خدا کے ہاتھ، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے یہ کام کسی اور کے سپرد نہیں کیا۔ عدالت اپنے بیٹے کے سپرد کی اور وہ انصاف کرے گا۔ اس طرح صلیب پر کسی نے کہا نا کہ باپ ان کو معاف کر، انصاف کے وقت نہیں کہے گا، یہ نہیں سمجھے آج۔ وہ ایک وقت تھا گناہگاروں کے لیے، خدا مسیح نے کہہ دیا کہ اے باپ ان کو معاف کر، لیکن اب نہیں کہے گا معاف کر، اب کہے گا وہاں ڈال دے جہاں گناہ اور دانتوں کا پیسنا ہے، اور جو نیک کام آپ نے کیا اس کا بھی آپ کو عزت ملے گا، جو برے کام کیے وہ بھی خدا کے سامنے ہیں۔ اور عزیزو بادشاہی کا ذکر کیا اور روح القدس کا ذکر کیا، اور قرآن مسیح نے کہنا ہے یہ بادشاہی میراث میں لو جو بنایا آدم سے تمہارے لیے تیار کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کل پرسوں کی بات ہے، یہ بھائی لوگ آ گئے ہیں کہیں سے، کرانی ہماری مشن تو وہ ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے اور اس کو بھی نہیں مانتے ہو، صرف یہ ہے کہ نشان کرتے ہیں، نشان کرنے سے ہم راست باز ٹھہر جائیں، لیکن عزیزو پینٹیکاسٹل تحریک نے اس پاکستان میں کام کیا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ چرچ پینٹیکاسٹل ہے اور اردو سے آپ کا ایک دن ہو، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور خدا سے روح القدس مانگے۔ جب مجھے روح القدس نہیں تھا 1985 میں نے بڑی کوشش کی، روح القدس کے سیمینار میں نے اٹینڈ کیے، کتابیں پڑھی جو پہلے روح القدس یافتہ سے کہ ان سے پوچھا کہ روح القدس کیسے ملے گا۔ ایک جستجو ہونی چاہیے، ایک خواہش ہونی چاہیے۔ جس طرح اگر بچے نہ ہوں تو ہم خدا سے کہتے ہیں خدا میں بھی بھیجا بھیجنا ہو، یا مکان اپنا نہ ہو دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمارا بھی اپنا گھر ہو۔ اس طرح اس سے بڑھ کر روح القدس ہے، اور خدا کا روح میں نے بتایا کہ آسانی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال میں ہی 120
की जमायत है और काल को क्या रहे थे इस पर जरा गौर करनी है। मेरे साथ रही है आपकी मेहरबानी। 120 की जमात है अमाल दूसरे बाब में और बिल्कुल सादा तरीका से लिखा है यक दिल होकर दुआ कर रहे थे। और कोई जादू टोने वाली बात वहां नहीं है, ना कोई और गहरी बात है, ना कोई और गहरा वेद है। खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है यक दिल होकर दुआ में मशगूल थे। हम इबादत में या दुआ में मशगूल भी नहीं होते, पीछे देखते हैं, अपने आगे पीछे देखते हैं, बरकत और कुछ कहां से आएगा। जब भी हम आते हैं हमारी तवज्जो खुदा के कलाम की तरफ नहीं होती। मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा वक्त है, फिर हम सब के मेरे भी अमाल आपके, क्योंकि खुदा तो मालिक साहबान का भी है और कलीसिया का भी है, सबके अमाल। और मैं इस वक्त चंद लम्हों के लिए इस बात को वादे करना चाहता हूं कि किस तरह 120 की जमायत है और सिर्फ एक ही बात मुझे यहां आपको बतानी है कि वो यक दिल होकर एक दिल होकर क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। और रूह कुद्स नाज़िल हुआ बड़ी कसरत के साथ, जोर की आंधी का सन्नाटा खुदा के कलाम में लिखा है। और सब रूह कुद्स से पढ़ के हालेलुया। आप भी रूह कुद्स पाना चाहते हैं, आप भी सोचे नहीं करते। मेरे चीजों ये बड़ी नेमत है और उसके बगैर ना स्टैंपा पर लगनी है आसमान पर जाने के लिए और पेंटिकॉस्टल होने के लिए बहुत जरूरी है आप रूह कुद्स पाएं और आप सली पाएं। खुदा के कलाम में आपने पढ़ा सुना, जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम्हारे साथ क्या होगा, कुव्वत पाओगे। और फिर जमीन की फिर नहीं लिखा कि यरूशलेम में रहना है, मुंतज़िर रहना है, इंतजार करना है, शीरा कॉलोनी में रहना है या कराची में। फिर लिखा है कि जमीन की इंतहा तक तो मेरे दुआ ठहरोगे। खुदा हम आप सबको बड़ी रखे। आइए सब बताइए आज रात के लिए तैयार हैं। हालेलुया। और दुआ करें, मैंने आपसे कहा कि मैक्स नवा करें।